Assalamu alaikum everyone. This is Adnan Azim from Greenwich University. Welcome to our 13th episode of Social Psychology series. Today we're going to be discussing gender differences. We have Mr. Aftab Shah joining us to discuss it in detail. कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. अदान, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन. So today we are going to talk. It's going to be an extension of the last episode. We talked about gene culture and gender. What we didn't have time and what we ended on the topic was collective societies and individualistic societies. So we were talking about some subtle differences between both of these societies, obviously, and the people who live in these societies. In today's, as you mentioned, we are going to talk about the differences between male and female from also a biological standpoint and also from Social the social standpoint. And obviously, differences behavior के अंदर क्या क्या हैं. Some of them, as I just said, stem from biology, some stem from sociology, and how we have been brought up essentially. That also creates differences. Mm-hmm. So let's start with, from a biological standpoint or from an evolutionary standpoint, what is the difference between a male and a female in terms of choosing a mate? And when they're choosing a mate, we have to consider that they're looking for someone long term, right? Okay. So mating behavior, I mean, you must have seen documentaries. There is a mating dance of different species. Yes. And when they do that Birds mating also. dance, they're actually trying to attract the opposite sex. Mm-hmm. And from that, I want to talk a little bit, like giving that example, I want to talk a little bit about what mating behavior of human beings looks like, right? तो उस किस तरीके से वो ढूंढते हैं एक मेट को, कौन सी क्वालिटीज़ उसके अंदर चाहते हैं वो. कुछ चीज़ें बहुत ही बेसिक सी हैं, तो आई जस्ट आउटलाइन दोज बेसिक थिंग्स फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड. सो फॉर अ फीमेल, इफ़ यू नोटिस दैट हर पेरेंटल इन्वेस्टमेंट इज़ अ लॉट. लाइक जैसे कि अगर एक औरत किसी के साथ भी शादी करेगी तो उसके बच्चे होंगे, एंड इफ़ अगर उसके बच्चे होंगे तो दैट्स गोइंग टू टेक अ टोल ऑन हर बॉडी. Not only will it take a toll on her body, there are going to be a lot of biological changes as a result of giving birth. उसके बाद उस बच्चे का उसने ख्याल भी रखना है, क्योंकि बच्चा प्राइमरीली डिपेंडेंट होगा उस माँ के ऊपर. ऐसा है. राइट. तो उसकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स. कंपेयरिंग दैट विद अ मैन, उसकी पेरेंटल इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं होगी ज़्यादा. अब एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी कहता है कि जिसकी पेरेंटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी वो चूज करेगा. Okay. जिसकी पेरेंटल इन्वेस्टमेंट कम होगी वो compete करेगा आपस में. Okay. उस मेट के लिए, या टू बी sort of like, and that's the underscore point here कि men compete for women's attention. ठीक है. Right. तो वो आपस में compete करते हैं, and this is something if you just concentrate on this statement, तो आपको ये नज़र आएगा स्कूल के अंदर भी, आपको डिफरेंट सिचुएशंस में नज़र आएंगी यही सोशल सिचुएशंस में, कि हाउ मेन्स बिहेवियर चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ अ वुमन बीइंग देयर, एंड हाउ दीज मेन सॉर्ट ऑफ लाइक Become more presentable. दे ट्राई टू बिकम मोर प्रेजेंटेबल, और कुछ ऐसी किस्म की कुछ चीज़ें करेंगे सो दैट दे कैन गेट सम अटेंशन फ्रॉम द ऑपोजिट सेक्स. अब पेरेंटल इन्वेस्टमेंट अगर जैसे मैंने कहा ज़्यादा होगी अगर किसी की, तो वो स्पीसीज़ में बता रहा हूँ, दिस इज़ across all species in this on this planet, कि जिसकी पेरेंटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी वो उस पोजीशन में होगा कि वो चूज करे. Okay. राइट. कि मुझे सही पार्टनर चूज करना है. सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, फ्रॉम एन एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू, the responsibility falls on a woman to choose the right partner. Okay. मतलब मर्द के अंदर वो नहीं होती चूज करना, औरतों को चूज करना है. सही है. कि ये मेरे लिए बेहतर से बेहतर है. एंड व्हाट वुड शी लुक एट फ्रॉम, अगर हंटर और गैदरिंग सोसाइटी पुराने ज़माने का होता तो यू वुड लुक एट कौन सी चीज़ ऐसी होती दैट वुड इंक्रीज द चांसेस ऑफ सर्वाइवल. तो वी वुड लुक एट फिजिकलिटी, फिजिकल स्ट्रेंथ, राइट, सोशल स्टेटस. और आगे जाके वही चीज़ जो है शायद चेंज हो जाए, वो लैंड ओनरशिप पे हो और वो फूड के ऊपर हो, कि वो जो ज़मीन है, whether that is fertile enough for there to be food and that food sustaining the entire family for a long time. तो आप बोलोगे कि नहीं, this person seems to be a stable option. अब
उसके बाद लैंड ओनरशिप के बाद और मजीद अगर के आगे आए मॉडर्न डे में, देन इट इजंट अबाउट फिजिकलिटी एनी मोर. शायद जब आप फार्मर्स भी होते थे, या मतलब फॉर एग्जांपल कल्टीवेशन है क्रॉप्स की, उसमें भी देयर इज एन एलिमेंट ऑफ फिजिकलिटी दैट वन वुड लुक एट, बट दैट हैज डिमिनिश्ड सिग्निफिकेंटली. हार्ड वायर्ड ये है कि हार्ड वायर्ड जहन में औरतों के है कि फिजिकलिटी के It's biologically hardwired. हार्ड वायर्ड के पर्सन विद ब्रॉड शोल्डर्स, जॉ लाइन थोड़ी सी वाइड होगी, ब्लॉकिश होगी, आप उस तरफ ग्रेविटेट होगे, सही है, आपको उस किस्म का इंसान पसंद आएगा. सही है. लेकिन मसला ये है कि एज अ रिजल्ट ऑफ वेयर वी आर इन प्रेजेंट एंड मॉडर्न डे लाइफ के अंदर, तो हमें वो फिजिकलिटी की जरूरत नहीं है. सही है. अब उनको चाहिए क्या कि अ पर्सन हु इज फॉर एग्जांपल फाइनेंशियली वेल ऑफ, बिकॉज नाउ उसका जो सर्वाइवल है वो फाइनेंस से वो बहुत closely खाने से connected नहीं है, है. वो है पैसों से. कि पैसों से खाने, फियाट करेंसी जब से इजाद हुई है कि एक चीज मैं पेपर जो है वो कहीं जाके दे सकता हूँ और वहां से मुझे कोई चीज जो है ना वापस मिलेगी. उसमें अब आप फिजिकलिटी की जरूरत नहीं है. तो हार्ड वाइड फिजिकलिटी है लेकिन अब जरूरत नहीं है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया. नाउ फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन हु मे बी स्क्रॉनी, हु मे बी शॉर्ट, who may not have that kind of like जो कि हम बात कर रहे हैं अपीलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, लेकिन आप उस तरफ आप वो उस तरफ अट्रैक्ट हो गए क्योंकि दैट पर्सन हैज दोज रिसोर्सेज, राइट, एग्जैक्टली, वो फाइनेंशियली स्टेबल है एंड दोज रिसोर्सेज दैट दे कैन ऑब्वियसली गिव यू एंड दे कैन प्रोटेक्ट योर ऑफस्प्रिंग एज वेल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एज अ रिजल्ट ऑफ बीइंग फाइनेंशियली वेल ऑफ. तो एक हमने बात की कि ये जो पेरेंटल इन्वेस्टमेंट है. अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है पेरेंटल इन्वेस्टमेंट में अदनान, के जिसकी पेरेंटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी उसका साइज कम होगा, जिसकी कम होगी उसका साइज बड़ा होगा, लाइक बॉडी वाइज साइज बड़ा होगा, राइट. एंड दैट जो जिसका, और इसके अंदर कंपटीशन भी है, तो आई वांट यू टू कनेक्ट. यस, लाइक एनी दैट वुड मीन, मैं इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भी स्पीसीज में मेल अगर के बच्चे दे रहे हैं तो उसका साइज अपनी उससे फीमेल से कम होगा, फीमेल का साइज बड़ा होगा. बिकॉज, और मैं ये भी कह रहा हूँ क्योंकि पेरेंटल इन्वेस्टमेंट एक अगर के उस स्पीसीज में मर्द की ज़्यादा है, तो एक तो मैं कह रहा हूँ साइज उसका कम होगा, और दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि वो चूज करेगा क्योंकि उसकी पेरेंटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है. है. तो वो मेट को जो है ना, मतलब कि देन फीमेल्स वुड हैव टू कम्पीट फॉर मेल्स अटेंशन. सही है. और तो इसका जो चीज़ जो है इट इज़ कनेक्टेड विथ पेरेंटल इन्वेस्टमेंट, बिकॉज अगेन लुक एट द ऑफ चांस, राइट. फॉर अ मैन टू हैव दैट काइंड ऑफ सेक्शुअल एक्सपीरियंस, उसके बाद ही डजंट हैव एनीथिंग, उसके बाद जो है ना दैट पर्सन कैन सिंपली लाइक टेक ऑफ, डिसअपियर. बट if you look at a woman, she would have to go through the entire journey. तो from a biological and evolutionary standpoint एक औरत का एक बहुत ज़्यादा, और obviously क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, तो then also आपको नज़र आ जाता है कि स्टेक पे भी काफ़ी चीज़ें हैं उसके, and then socially and behaviorally वो डिफरेंट सोसाइटी पे होगी, लेकिन उसका सबका जो है ना अक्रॉस कल्चर सेम ही किस्म का जाविया होगा. woman has a lot more to lose. A woman has, और ये हम जुमला बोलते हैं कि woman has a lot more to lose, and that is true, and because that is grounded in evolutionary psychology. अब मैंने जो अभी तक बात बोली है, and this is again would apply to any culture anywhere in the world, कि एक औरत को एक मर्द चाहिए होता है जो कि उसके ऑफस्प्रिंग का और उसका ख्याल रख सके, राइट. इवन व्हेन यू से दैट women empowerment and everything, उसके बावजूद भी a woman would respect someone जो उसके लिए who's able to take care of her. Women, no matter how rich she is, she would want that. Isn't that interesting कि चाहे जितना भी आप बोलें that a woman can take care of herself and everything, but that element has to that element is there. Biologically ingrained that a man wants to take care and a woman wants to be taken care of. Not just taken care of herself. That is the interesting part. Taken care of by someone else, and particularly a male. मेल, बट उसका भी एक पर्पस है, नॉट जस्ट लाइक कि मुझे मेरा कोई ख्याल रखे, बिकॉज दैट वो तो फिर एक मर्द में भी होगा ना कि औरत मेरा ख्याल रखे. ठीक है. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. इट गोज अ लिटिल बिट डीपर इन द सेंस दैट के मेरे बच्चों का ख्याल रखे. जस्ट लाइक इट्स लाइक यू आर प्रिंटिंग योर सबकॉन्शियस ऑन टू समवन कि मुझे ये पसंद है इंसान, लेकिन मुझे इससे अटेंशन सिर्फ मुझे नहीं चाहिए, मैं उस अटेंशन को गेज कर रही हूँ कि कितना अभी दे रहा है,
इसका मतलब हुआ कि आगे जाके मेरे बच्चों को भी उतना ही अटेंशन देगा. सही है. अगर मुझे अटेंशन अभी नहीं दे रहा तो ये आगे जाके मेरे बच्चों को भी अटेंशन नहीं देगा. सही है. तो नॉट जस्ट टेकन केयर ऑफ उसी मोमेंट के अंदर बट फॉर अ लॉन्गर टाइम एज वेल, कि फिजिकल अपीयरेंस ड्विंडल कर जाएगी क्या, फिर ये तब भी मुझे छोड़ देगा, और दैट पर्सन वुड स्टिक अराउंड टू लुक आफ्टर माई चिल्ड्रन एंड प्रोटेक्ट माई चिल्ड्रन ऑल्सो. तो दैट इज एन इंटरेस्टिंग पॉइंट, और वो हमें हर जगह पर नजर आता है in every society and culture, right? Where men have to compete for attention, and women have to choose, right? So what I'll do right now is, once we have set this biological basis for mating behavior, now let's talk about some of the basic differences, जो कि physical differences भी हैं और थोड़े interesting किस्म के भी differences हैं. Female on average have 70% more body fat and 40% less muscle mass. They are on average 5 inches shorter than men. They weigh 40 pounds less than men. They are more sensitive to smell and they are more sensitive to sounds, right? They are twice as likely to have anxiety and depression. And compared to females, average male is स्लोअर टू एंटर प्यूबर्टी. जैसे हम कहते हैं ना कि एक लड़के जो हैं और लड़की अगर हम उम्र हैं तो देयर चांसेस ऑफ बीइंग टुगेदर इज आल्सो, इट आल्सो रिड्यूसेस. उसकी मेच्योरिटी वाइज भी आल्सो कम होती है एक लड़के की. यानी कि अगर एक लड़का 23 साल का, लड़की 23 साल की है, तो देयर इज द ऑफ चांस के लड़का इतना मेच्योर नहीं है लड़की के एज के हिसाब से. सो दे आर लाइक ऑलवेज 2 years यंगर in terms of maturity, because उसकी reasoning ये है because men hit puberty 2 years later than women do on average, right? So that's why also they tend to be a little bit immature for that girl's age. इस वजह से भी वो difference आ जाता है. अच्छा, उसके अलावा men are quicker to die by 4 years. मरते जल्दी हैं, or they are also late in terms of entering puberty. Men are 3 times more likely to be diagnosed with ADHD. They are 4 times more likely to commit suicide, and they are 5 times more likely to be killed by lightning. Okay. Right? तो अगर के lightning हो रही है कहीं पर भी, तो there is a 5 times more chance. What's the reason behind that? I don't know the reason. That's interesting. And this is something that I want to also look into. लेकिन ये पता नहीं क्यों है 5. Like imagine 5 times more likely. So if a woman is walking and a man is walking in thunderstorm हो रहा है, तो 5 times more likely than a man is going to be hit by lightning than a woman would, right? Men are also more capable of wiggling their ears. So for example, we can move our forehead and we can wiggle our ears like this, and women on average can't. Okay. अब इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें औरतें जो है अपना बिल्कुल ही नहीं कर सकती. कुछ औरतें they can move their ears and they can wiggle them. लेकिन on average men tend to do that. Men tend to do it more than women, and they are capable of doing it. There has to, और उसमें skeletal differences हैं, इस वजह से वो चीज़ है. Because that's something I was interested in as well. I said, that has to do with skeletal muscles being different in men and women. Acha, we've covered basically एक तो evolutionary biological, but also some of those differences which have been established not only in clinical psychology, but also in terms of appearance, also in terms of skeletal muscles. तो हमने कुछ differences cover कर लिए. Now I want to move the conversation a little bit to the social differences. Okay. राइट. ये सोशल डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट है इनके ऊपर डिस्कस करना, ताकि पता चल जाए कि बायोलॉजिकल कितने हैं और कितने ज़्यादा सोशल हैं या कल्चरल हैं. और एंड देन बिकॉज द थिंग इज़ के वो और ज़्यादा डिस्पैरिटी बढ़ रही है मर्दों और औरतों में, राइट. तो इट्स इम्पॉर्टेंट. फॉर एग्जांपल जैसे कहना ना, व्हेन फॉर एग्जांपल वी टॉक अबाउट empowering women, तो we also talk about enlisting them in professions that are male dominating. राइट, कि औरतें वो क्यों नहीं कर सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल वी टॉक आर्मी इज या आर्म्ड फोर्सेज इज वन ऑफ दोज थिंग्स, राइट. तो इस वजह से भी दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट. सो वन ऑफ द डिफरेंसेज यू वुड सी इज व्हेन बॉयज एंड गर्ल्स प्ले. If you look at boys, whenever they are playing, they tend to play in larger groups, and when you look at girls,
young girls, they tend to play with either one other girl or two other girls, so they are more intimate. Okay. And the thing is that in terms of expression also, men tend to be more physical. If they're Okay. playing in larger groups, so they tend to interact with one another quite physically, Mm-hmm. right? So or and that difference, something that you would notice in bullying as well, that women are not physically bullies, right? They don't physically assault other peers और उनको bully करते हैं. They're verbal. They're verbal, right? तो अब verbal sophistication औरतों में उसी time आपको नजर आती है whenever they are playing. तो लड़के they are more physical in the play, and लड़कियां जो हैं they are more social in their play. They tend to interact more, right? They tend to be more intimate in terms of whatever their play is, and it's sophisticated in that way. Whereas बच्चे जो दूसरे लड़के जो play करते हैं, they are like more of physical, उसके अंदर एक differences आते हैं कि आप लड़ाई कर रहे हो, आप भाग रहे हो एक दूसरे के पीछे. So that element is there. अच्छा, लड़के जो छोटे बच्चे होते हैं, they tend to play with boys अगर के मेल हैं, तो अगर फीमेल हैं, लड़कियां हैं, तो वो और मजीद दूसरी लड़कियों के साथ खेलती हैं. ये जो सेक्स डिफरेंसेस हैं और मजीद स्टैब्लिश हो जाते हैं, जो फिर आगे जाके मजीद आपको नज़र आते हैं. यानी कि कुछ जो प्लेग्राउंड, जो हम जेंडर्ड बिहेवियर की हम बात कर रहे थे, उसका बायोलॉजिकल बेसिस भी है. यानी कि अगर के बायोलॉजिकली आई एम प्री डिस्पोज टू सर्टेन बिहेवियर, यानी कि आई एम इंटीमेटली एंगेजिंग विद समवन सोशली, मैं उससे बात कर रहा हूँ बनिस्बत के मैं भाग रहा हूँ इर्द गिर्द, राइट? ये अगर डिफरेंस है, तो मैं जितना ज़्यादा उस इंसान से इंटरेक्ट करूँगा, उतनी ज़्यादा वो एक्टिविटीज़ बढ़ती जाएंगी. Okay. तो फॉर एग्जाम्पल, इफ द एक्टिविटी दैट आई लाइक इन्वॉल्व्स 2 or 3 पीपल जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, लाइक हमारा जो हमने जो प्ले किया हुआ है, कहानी बनाई है, उसमें ये है कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं आ रहा हूँ, या फॉर एग्जाम्पल हमने एक पार्टी की है जिसमें लोग आ रहे हैं, देयर इंटरेक्टिंग विथ वन अनदर. मैं और मजीद एक्टिविटीज, क्योंकि हम साथ में हैं, तो आई कैन कम अप विथ मोर, एंड एज टाइम प्रोग्रेसेस मोर एंड मोर एक्टिविटीज आर गोइंग टू बी इंक्लूडेड विद इन दैट, और ज्यादा गैप बढ़ता जाएगा. Okay. And you're going to come up with more and more kind of those similar kind of play activities. When you talk about boys, because there is physicality involved in it, कि आप engage कर रहे हो, लड़ाइयाँ कर रहे हैं, खेल रहे हैं, भाग रहे हैं, कूद रहे हैं, तो they will come up with more and more activities. Physical activities, और वो आपको on a spectrum आपको difference बढ़ता हुआ नजर आएगा. So one party would be more involved in physical activities, one party would be more involved with stories and interactive activities, जिसके अंदर social skills आपकी बहुत ज़्यादा है. और फिर ये आगे जाके ना, I'll tell you कि difference आपको कहाँ नजर आता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट था पार्ट कवर करने का प्ले का, सो दैट वी कैन टॉक अबाउट फ्रेंडशिप्स एंड पीयर रिलेशनशिप्स, एंड वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट वोकेशंस एज वेल, एंड देन वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट फैमिली रिलेशंस. अब अगर के औरतों का एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्ले बिहेवियर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, जब यही बच्चा, लड़का या लड़की, जब अपने दूसरे दोस्तों से बात करता है या रिलेशनशिप में बात करता है, उसके अंदर एक सपोर्ट का एलिमेंट होता है, right? क्योंकि you're not interacting with a larger group, you're interacting with 3 or 4 people, and you're more social, and you're not using physicality as much of an interaction point. आप बातचीत कर रहे हो उनके साथ, you also tend to have better support systems, right? आपके जो दोस्त बनते हैं वो लॉन्ग टर्म दोस्त बनते हैं. You check up on them more often. Okay. Like लड़कियां फॉर एग्जाम्पल एक दूसरे को गिफ्ट्स देती हैं, लड़कियां आपस में जो है एक दूसरे को पूछती हैं, केयर करती हैं. वन फॉर एग्जाम्पल इज गोइंग थ्रू एनी काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम, द अदर वुड हेल्प, ऑन एवरेज द अदर वुड हेल्प. ये आप डिफरेंस फिर मर्दों के अंदर देखते हो, वही वाला फिजिकलिटी वाला. they tend to be, they can't for example socially express themselves अगर के पेन भी है, right, या कोई प्रॉब्लम भी है. They tend to self isolate, they tend to not talk about those things, and what helps them again is the physical aspect. So this phenomena of gym जाना breakup के बाद is comes from that same play area वाली जो बात है. सही है. That in terms of expressing emotions, they don't know how to, they isolate. Exactly. और उनको आता क्या है? The physical part. They are only able to express their emotions and feelings through that physical exercise or exertion. अब वो किसी के लिए sports हो सकता है, किसी के लिए for example कोई gym हो सकता है, but it has to have an element कि एक larger group है,
राइट, और उसका वो पार्ट बन गया, वो लार्जर ग्रुप को इतना अच्छी तरीके से जाने या ना जाने, दैट डजंट सही मैटर, है, राइट, एज लॉन्ग एज दे आर पार्ट ऑफ दैट ग्रुप. सही है. टेंडेंसी सेल्फ आइसोलेट की होती है, जो हमने पहले भी डिस्कस की थी, दैट इज वेरी वेरी बैड. वो एग्रीवेट कर देगी. कोपिंग मैकेनिज्म अगर देखा जाए कि मुझे अगर प्रॉब्लम हुई है, इफ आई एम अ वुमन और आई एम अ मैन, मैं अगर के सेल्फ आइसोलेट करूंगा, अगर मुझे प्रॉब्लम आई है, तो और मजीद प्रॉब्लम एग्रीवेट हो जाएगा, Okay. उससे बेहतर नहीं होगा. लेकिन मैं टेंडेंसीज की भी बात कर रहा हूँ कि बीइंग अ मेल और अ फीमेल, कुछ मेरी टेंडेंसीज होंगी कि एज अ फीमेल आई माइट want to engage my social circle and social support system, and as a male what I would want I is would want to isolate and do some physical activity. I would tend to isolate myself into some physical activity, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है. I may engage with my friends लेकिन not talk about the issue. So I Okay. might want support in a different way, in a Okay. play kind of an area, जिसमें मैं ग्रुप का हिस्सा हूँ and we are just like going on a day trip Okay. or going on a vacation of some kind, जिसके अंदर हम लड़के हैं and उसमें अंदर ये नहीं है that we talk about that thing, right, जो कि मुझे bother कर रही है. You talk about all other things besides that Exactly, thing. and there is a physical element to it as well, right? और वो that helps people. वोकेशन में डिफरेंसेस आगे जाके आपको नजर आते हैं, राइट. वोकेशन में आपको कौन कौन से डिफरेंसेस नजर आएंगे, दैट मेन दे लाइक वर्किंग विथ थिंग्स, राइट, Yes. एंड वुमेन दे लाइक डीलिंग विथ पीपल मोर. People. और वो फिर वोकेशन में आपको किस किस्म के वोकेशंस होंगे, दैट I वुड think यू वुड that's the से. reason why more often than not you see women in psychology. Like it's very rare that you get to see males in psychology. अब वी कैन टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ प्रोफेशंस जिसके अंदर यू आर डीलिंग विथ अ लॉट ऑफ, you're either working in front of screens or working with things. So we can talk about engineering, mathematics, and we can look at professions जिसके अंदर आपके पास लोग होते हैं जो लोगों के साथ काम करते हैं. So we can look at नर्सिंग का प्रोफेशन, डॉक्टर का प्रोफेशन, साइकोलॉजी का प्रोफेशन, टीचर का प्रोफेशन, ऑल ऑफ दोज प्रोफेशंस दैट हैव टू डील विद सोशल स्किल्स. अब इसी में भी आपको नज़र आ जाएगा द सेम थिंग दैट वी वर टॉकिंग अबाउट, कि एक इंसान है कि जो कि प्ले में जो है वो डोमिनेट कर रहा है, फिजिकल में जा रहा है पार्ट में, लेकिन पार्ट ऑफ द ग्रुप है, लेकिन नॉट पार्ट ऑफ द ग्रुप इन अ वे, लाइक नॉट इंडिविजुअली एक किसी से इंटरेक्ट कर रहा है सोशली. वो एलिमेंट्स पर आपको वोकेशंस में भी नज़र आते हैं कि लड़कियां जो है दे आर मोर टुवर्ड्स सोशल साइड ऑफ इट, वेयर बिकॉज दे हैव वेरी गुड सोशल स्किल्स इन टर्म्स ऑफ इंटरेक्टिंग विद अदर पीपल, वेयर एज मैन दे टेंड टू बी आइसोलेटेड बट within a part of a group also. Larger sense of community ज़रूरी होता है उनके लिए. One more interesting thing that comes out of the gender difference or sex difference between in vocations, के औरतों को कुछ certain किस्म की jobs पसंद आती हैं, मर्दों को कुछ certain किस्म की jobs पसंद आती हैं. अच्छा, उसके अंदर एक interesting point ये है that women go for jobs which reduce inequality. यानी कि they are always, because they have a trait of compassion, they care about other people. और सोसाइटी उनसे वो वाली बात वो एक्सपेक्ट भी नहीं करती ना. गो बैक टू दैट एवोल्यूशनरी स्टैंड पॉइंट के men have to compete with one another. They also have the उनके अंदर हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन का है वो ज़्यादा होता है, वो इसी वजह से होता है बिकॉज दे हैव टू compete. और उसमें से कोई बिहेवियर भी निकलेगा और वो बिहेवियर सोशल डोमिनेंस का निकलता है, राइट, कि दे आर आउट देयर, कि एग्रेसिव आउट देयर, डोमिनेट करना, एंड दैट कैन क्रिएट एन इक्वालिटी. कि अगर मेरा यही जाविया है कि मैं अगले इंसान को कुचलूं और उससे आगे बढ़ूं. औरतों के अंदर क्योंकि वो हार्मोन कम होता है, एस्ट्रोजन ज़्यादा होता है, दे डोंट compete. दे क्रिएट एनवायरनमेंट्स जो कि बहुत ही सेफ होते हैं, कंड्यूसिव होते हैं. पॉलिटिक्स में भी लोग यही कहते हैं, आर्गुमेंट देते हैं कि औरतों को मर्द बनने की ज़रूरत नहीं है. दे कैन एम्यूलेट देयर ओन सॉर्ट ऑफ लाइक जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो जेंडर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके ऊपर वो पॉलिटिक्स कर सकती है, विच इज़ अ कंपैशन काइंड ऑफ अ पॉलिटिक्स, जिसमें वो दूसरों का इंक्लूसिव, कंपैशनेट, दूसरों का ध्यान रखना है, ख्याल करना है, राइट, एज अपोज टू कि किसी को कुचल दो और उससे आगे डोमिनेशन करो, डोमिनेट करके. तो दिस जो पर्सनैलिटी डायमेंशन है ना, कि एम्पैथी में औरतें ज़्यादा हैं, डोमिनेशन में मर्द ज़्यादा हैं, ये एक आपको इसका बायोलॉजिकल बेसिस भी है, और नॉट जस्ट इसका बायोलॉजिकल बेसिस हो, आपको ये बिहेवियर में भी नज़र आ जाता है, राइट. और फिर ये पूरी एक सोसाइटी के सोशल क्लासेस जो हैं आपकी, उसको भी अफेक्ट करता है. तो वोकेशनली औरतें उस तरफ जाएंगी. तो फॉर एग्जाम्पल इफ अ मेल इज गोइंग टू बिकम
because he wants to compete and earn money so that he can project himself as a person coming out of a Lamborghini, right? और उसका बहुत बड़ा एक महल है, so that can maximum female attention उसको मिले, that he can present himself as a prospect कि देखो I am a high He's an achieving ideal male, prospect. right? Ideal prospect हूँ मैं, तो वो compete करेगा क्योंकि एक औरत को उस चीज करने की जरूरत ही नहीं है, तो शी विल हेल्प, शी इज गोइंग टू बिकम अ पब्लिक ऑफेंडर, पब्लिक डिफेंडर. एक तरफ वो है कि प्रोसिक्यूटर है या एक बंदा वो है जो कि सिविल लिटिगेशन करेगा पैसे कमाने के लिए. सही है. दूसरी तरफ एक खातून है जो बोलेगी कि पब्लिक डिफेंडर बनूंगी मैं. और इसकी आपको एग्जांपल लिटरली मैं आपको इधर भी नजर आएंगी. आई हैव वर्कड विद फीमेल लॉयर्स आपको ज्यादा मिलेंगे जो प्रो बोनो केसेस करती हैं. दे लिटरली वांट टू हेल्प पीपल. डोमेस्टिक वायलेंस केसेस से लेके आपको एडिक्शन के केसेस होंगे, हर केस के अंदर फैमिली लॉ के केसेस में आपको खवातीन मिलेंगी जो कि दे वांट टू हेल्प अदर्स, प्रो बोनो केसेस करनी है, किसी की मदद करनी है. एनजीओज में भी आपको औरतें ज्यादा मिलेंगी, राइट? दे वांट टू रिड्यूस इनइक्वालिटी अगेन. और मर्द को डोमिनेट करना होता है और मर्दों को पैसे कमाने होते हैं, तो दे गो टुवर्ड्स दोज प्रोफेशंस एज वेल दैट आर मोर सॉर्ट ऑफ लाइक कोट अनकोट प्रैक्टिकल, जिसको हम बोलते हैं कि यार पैसे कमाने ना, राइट? आइडियलिज्म की तरफ नहीं जाना. सो एक और चीज उसके अंदर है that we will talk about is family relations. So if you look at women, they bind. So for example, if it's a daughter, if it's a mother, if it's a grandmother, the role that they play in a family structure is very, very important. दावतें करना, रिश्तेदारों को इकट्ठा करना, यहाँ तक पे कि जब रिश्ते बनाने की बात होती है ना, नए रिश्ते बनाने की, तो मर्दों को एक डेफिसिट महसूस होता है. दे कांट डू एनीथिंग. वो कहते हैं ये औरतों की बातें हैं, ये औरतों की चीजें, कोट अनकोट. आई मीन they're like that's your responsibility, you figure it out. हाँ, तो अगेन ये दिस इज समथिंग दैट आई एम टॉकिंग अबाउट एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी दैट आई एम लिविंग इन. लेकिन ये यहाँ पर इसी वजह से होता है. तो इसका पीछे जो होता है पस मंजर ये है दैट मेन हैव अ डेफिसिट सोशली, so they can't sort of like initiate new relationships easily. Okay. Women can do that. Women are very good at those social skills जो कि मैं playground में बात कर रहा था, एक बचपन में ही वो चीजें सेट होती हैं. क्योंकि they are good at it, तो उनके लिए नए रिश्ते बनाना, वो बारीकियां समझना, because it's very subtle to engage and to be to start or initiate a new relationship. तो वो कहते हैं कि ये औरतों की चीजें आप खुद बात देख लो, खुद ही कर लो. तो वहां पर भी आपको नजर आता है women tend to not only host more events, दावतें करना, but they also give more gifts. जैसे मैंने कहा कि वो फोन करके पूछती हैं, they are more considerate and empathetic, तो they are more perceptive also. यानी कि खवातीन झूठ पकड़ लेती हैं आपका, मर्दों का बहुत आसानी से झूठ पकड़ लेती हैं, because they are looking for those signs as well. Okay. There is also a reason why more psychologists are they're more female psychologists is because of the reason that they are perceptive. यानी कि अगर वो पहचान लेती हैं कि यार इसकी आज तबीयत ठीक नहीं है, फॉर एग्जाम्पल दे आर लाइक क्विक टू गेज कि ये इंसान ये सोच रहा है, okay. ये इंसान ये झूठ बोल रहा है, ये इंसान की वाइब ऐसी है. they are more intuitive as well in that way. Okay. Right? And then again they are playing on their advantage ना. प्रोफेशन वही होता है. मैं फिजिकली अगर के स्ट्रांग हूँ तो मैं ऐसे ही प्रोफेशंस और वोकेशंस में जाऊंगा जहां पे उसकी डिमांड है. Exactly. और एज अ वुमेन अगर के मैं एम्पैथेटिक कंपैशनेट हूँ तो और मैं परसेप्टिव हूँ, तो मैं उन्हीं ही प्रोफेशंस में जाऊंगी जो कि दे डिमांड दैट रिक्वायर दोस पर्सनालिटी ट्रेट्स जो कि मुझे सक्सेसफुल बनाएंगे. राइट? तो अब वो उसके अंदर एक यूनिकॉर्न्स होते हैं या तो उसमें एक आउटलायर केसेस होते हैं, जैसे मैं हूँ या आप हैं, एक साइकोलॉजिस्ट हैं बट मेल्स हैं, राइट? तो वी आर सॉर्ट ऑफ लाइक, और इस वजह से आई ऑलवेज लाइक अप्रिशिएट मेल साइकोलॉजिस्ट्स बिकॉज दे आर गोइंग आउट ऑफ दोज दैट आउट वो वाला मेजोरिटी वाली चीज में ना, रेल्म में. और हम अगर के इमेजिन इफ अ फीमेल गोज लाइक कि मुझे आर्मी में जाना है, राइट? तो एक तरीके से आप उसमें देखोगे ना कि यार दिस पर्सन इज ब्रेव, डिफरेंट, बट दिस पर्सन इज आल्सो समथिंग जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज कर रहा है. और अब इसके अंदर वो चीज है जो फिजिकल एलिमेंट जो हम एक डेफिसिट समझ रहे थे कि औरत में नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर वो चीज है. तो वो बहुत अपीलिंग बन जाता है एक इंसान और इंटरेस्टिंग बन जाता है. उसी तरह अगर कि मैं कह रहा हूँ मर्द हजरात ऑन एवरेज आर नॉट एक्सप्रेसिव, वो कंपैशनेट इतने नहीं होते, इतने ज्यादा एम्पैथेटिक नहीं होते,
social skills उनकी अच्छी नहीं होती, they can't like communicate with one another, they can't express themselves express properly. themselves, they are not perceptive enough to understand कि यार शायद इस इंसान की तबीयत खराब होगी आज, और झूठ नहीं पकड़ सकते, इस किस्म की चीजें. लेकिन अगर कि एक मर्द वो चीज कर सकता है तो आप बोलते हैं कि नहीं, दिस पर्सन इज अ बिट डिफरेंट, राइट? तो इस तरीके से दैट्स द रीजन ऑल्सो व्हाई आई अपलॉड एंड आई एनकरेज मेल साइकोलॉजिस्ट या स्टूडेंट्स who are in psychology. Acha, now we are going to talk a little bit about smile also. Women tend to smile more as compared to men. Now that's just also a fact that is there. On average, this happens. We talked a little bit about social dominance. There is an phenomena called precarious manhood. Okay. That a man has to defend his honor and he has to prove that he is honorable. Okay. Right? अब वो ऑनर सोसाइटीज़ के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है. जैसे पाकिस्तान भी एक ऑनर सोसाइटी है जिसके अंदर इज्जत और गैरत के मामलात होते हैं. तो अब उसके अंदर एक मर्द को प्रूव करना पड़ता है कि देखो मैं जो हूँ एक मर्द हूँ, right? And then it comes from that aggression ka umbrella, and from aggression, and we talked about testosterone as well, and how it plays a role in that kind of behavior. So social dominance, aggression, and going out there in society to prove yourself and prove your grit कि मैं एक मर्द हूँ और I'm capable of handling a lot of pressure, and this dialogue also has to be opened up कि what it means to be a man. So what it means to be a man, whether it means to protect your offsprings, protect your sister and your mother, right? Or for example, does it mean that you are going to hit your sister or your mother if they dishonor you? और वो dishonor का मतलब ये है कि वो कोई ऐसी चीज करते हैं which goes against established traditions of respect and honor. अब इसमें एक एग्जांपल होती है because this is important in this, क्योंकि इसमें मैंने रिसर्च भी की थी, तो I want to talk a little bit about this कि when we talk about, for example, if a girl is talking to another boy और बाप ने देख लिया या भाई ने देख लिया कि मेरी बहन या मेरी बेटी किसी से बात कर रही है, in that situation इज्जत और गैरत वाली जो प्रिकेरियस मैनहुड की है कि वो वाली बात आ जाती है, एंड देन द मैन और द आइदर the men, they start hitting the woman or they start abusing the person or they start curtailing the woman from that behavior. इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, but that separation is there कि aggression वाली चीज में कि women would not do that to a man but a man would do that to a woman, क्योंकि जो ऑनर का जो समझो कि जो अटैच्ड है, लाइक इफ माई द इज्जत एंड गैरत इज अटैच्ड टू अ वुमन, तो इफ शी इज पूरे घर की इज्जत और गैरत वो लेके चल रही है साथ में, तो इफ एनीथिंग हैपेंस, इफ शी इज लाइक इफ शी बिहेव्स इन अ सर्टेन वे, तो फॉर सम रीजन मेरी इज्जत खराब हो गई है. But do you see that how messed up that concept is, and it can create so many problems कि मैं घर पे बैठा हुआ हूँ, मेरी बीवी मेरी इज्जत लेके घूम रही है, और मेरी बहन मेरी इज्जत लेके घूम रही है, या मेरी बीवी में या मेरी अम्मी मेरी इज्जत लेके घूम रही हैं, तो उनके साथ कोई चीज हो जाती है, if they voluntarily choose to behave in a certain way, then that is an implication on me. I am answerable for that, right? To society, to other men, and that is where this toxic cycle starts. Okay. Right? तो अब ये यहाँ पर कहीं ना कहीं पे obviously it comes from that honor culture, काफ़ी honor cultures हमारे पास हैं, उसमें से भी आता है, but it has to be stopped, and exposure and education sort of curtails these kinds of patterns जो के हैं आपके पास. Anything that comes up in your mind regarding honor, violence, या honor culture? One thing that I would say that I find most surprising is even after all the education and everything, I feel like there's something about honor or tradition or culture or belief, or I don't know what it is. At times, I would say that a lot of times it triumphs all of exposure and all education and all civility at times, which is something that I find very surprising. For example, a person who's well educated, a person who has seen the world, a person who understands how the modern world works, but I've seen those same people being overpowered by culture and tradition and this whole aspect of honor and values. Like it's mind-boggling at times. It is true. I mean, you're right. Sometimes it just simply takes over basic rational behavior.
बट एक ये जेंडर डिफरेंस ऑनर बेस्ड वायलेंस में सिर्फ ये देखना है कि इट्स मोस्टली कमिटेड ऑन वुमेन, राइट? ऑनर एक मर्द का है, औरत उसको पामाल कर रही है. तो दैट इज द जेंडर डिफरेंस और या द डिस्पैरिटी दैट आई वांटेड टू हाईलाइट, दैट women have sort of like they are the ones who are responsible, कि ऑनर का सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, और मेल्स जो हैं वो उसको रेगुलेट कर रहे हैं वन वे और दी अदर पूरी सोसाइटी के अंदर. अच्छा, दिस हैज़ टू दिस बिकॉज वी आर ऑन द टॉपिक. फाइनल चीज़ जो हम बात करेंगे, दिस आइडिया ऑफ ऑनर ऑल्सो इज कनेक्टेड टू सेक्सुअलिटी, राइट? द रीज़न वाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज ऑब्वियसली कि एक औरत who has multiple sexual partners from an evolutionary standpoint, she is not going to attract a mate. Okay. Right? The reason why that would happen is because a man would be ridden by this insecurity that this woman has had a lot of partners, then she would leave me or she would abandon me because she has different experiences to compare my experience with. Right? तो उसकी इनसिक्योरिटी बैक ऑफ द माइंड होती है, एंड दैट्स वाई. और वो जो दूसरी बात मैंने बताई थी आपको पेरेंटल इन्वेस्टमेंट की, तो इट्स वे टू मच ऑफ अ रिस्क टू गो इनटू इट. तो दैट्स वाई वुमेन आर आल्सो अप्रीहेंसिव. एज फार एज सेक्सुअलिटी इज कंसर्न, दोनों की जो क्यूज होती हैं वो सेम है, राइट? फॉर एग्जाम्पल विजुअली अगर क्यूज दिखाई जाएं, अगर के इन पर्सन उनको क्यूज दिखाई जाएं, दे रिस्पॉन्ड द सेम बिकॉज दे हैव द सेम बायोलॉजिकल मैकेनिज्म. लेकिन डिफरेंस ये है कि व्हाट लीड्स अप टू इट. लाइक मेन आर एवर रेडी, राइट? सो सर्वे वाज डन जिसके अंदर बार बार सवाल पूछा जाता है, वेर फॉर जो हम अगर के आम जुबान में भी ना लोग जो है अपना आपस में जब मजाक कर रहे होते हैं तो इस किस्म के ही मजाक कर रहे होते हैं, दैट इफ अ वुमन फॉर एग्जाम्पल इज गिवन अ चॉइस टू interact with someone sexually, experience something, so she is going to be like, no, I don't want to, because I don't know the person, there is no context behind this. Right? इसका मतलब ये नहीं है कि डिजायर नहीं है, डिजायर वहीं पर ही है. when you ask a man, the man is going to be ever ready, right? The man is going to be like, okay, ठीक है. And on average this has been seen, if there is a survey ever that would you want to have sexual experience with a stranger, men tend to say yes and women tend to say no, right? अब डिजायर का इसमें कोई भी ताल्लुक नहीं है, दोनों का सेक्सुअल क्यूज डिजायर सेम ही. इट्स जस्ट द वे दे ऑपरेट एंड व्हाट काउंट्स बिफोर हैंड, what is leading up to that intercourse, what is leading up to that interaction, which is very intimate, वो बहुत ही important होती है, right? उसमें मैंने सिर्फ आपको बेसिक जो डिफरेंस बताया वो यही है कि men tend to be ever ready, women tend to think a lot before they jump into something like this. मैंने आपको बताया, but women who don't do that, they tend to have less mating options. Okay. Because इसका ताल्लुक जैसे होता है ना कि एक औरत बुर्के में आ रही है और अबाया पहन रही है, from an evolutionary standpoint it makes sense, because if I show you that as a result of this symbol culturally जो मैंने पहना हुआ है, I do not have any partners, I haven't had any partners, that symbolizes that conservative values, thereby not a lot of partners. तो women put themselves or portray themselves as such कि मैं बहुत ही नेक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ. And why? Because it appeals to a man's ego. Right mate. Right mating, और mating की एक strategy है, और ना सिर्फ एक समझी हुई mating की strategy है, एक signal जाता है एक मर्द को कि I'm safe. Right? That I do not have multiple partners. This means that you will not feel as insecure with me as opposed to someone who has had a lot of partners, right? So it's a very important kind of a strategy that women go through. Like they don't even know that. Matlab, they might say that I'm doing it because of religion, but not just it's that. Biologically it's biological. It's like it represents a man's biological need as well. Okay. That I'm safe and secure with my partner and she will not abandon me, right? वो सेम चीज़ है. abandonment का डर जैसे एक औरत को होगा तो एक मर्द को क्या होगा कि मेरी बीवी छोड़ के किसी और के पास ना चली जाए, किसी और मर्द के पास ना चली जाए. औरत का होगा कि मुझे मर्द छोड़ ना दे और मेरे ऑफस्प्रिंग्स बच्चों को ना छोड़ दे, और अपना और औरत को मर्द को ये होगा डर कि ये जो है मुझे ना छोड़ दे किसी और मर्द के लिए. Exactly. Right? So that's a difference. And
उसी के अंदर व्हाट यू विल नोटिस इज, जो कि हम डिस्कस कर रहे थे, देयर इज अ डेटा वाइज पोर्नोग्राफी की व्यूअरशिप में गैप है. औरतें नहीं देखती, मर्द ज़्यादा देखते हैं. मैं ये जब कह रहा हूँ औरतें नहीं देखती, ऑन एवरेज कम देखती हैं, Yep. लेकिन मर्द हजरात बहुत ज़्यादा देखते हैं. जो उनकी व्यूअरशिप, उनकी ऑडियंस है, वो कंज्यूमर जो बेस है, वो यही अपना Predominantly men. predominantly मेल है, राइट. सो दैट ऑल्सो इज अ बिग डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ हाउ वी आर सेपरेट, और जिस तरीके से हम बिहेव करते हैं through in terms of our sexuality also, that men tend to be more impulsive, promiscuous, and women, और जाहिर बात है उनकी parental investment कम है तो वो चीज़ें कर सकते हैं. On the other hand, women don't tend to do that. Like उनकी pornography viewership से लेके हर चीज़ में they don't like do that. They are not as impulsive and As promiscuous men are. on average as men are. So I think those are some of the differences, and I think that we have covered most of those social differences as well as Evolutionary and biological जो कि बायोलॉजिकल differences. और एवोल्यूशनरी हैं, जो कि आपके बिहेवियर के अंदर नज़र आ रहे हैं. तो वो जो डिफरेंसेस हम बात कर रहे हैं जो कि बायोलॉजिकल हैं या कि जो सोशल हैं, यानी ये ना समझें कि वो सिर्फ सोशल डिफरेंसेस हैं, उनकी बायोलॉजिकल कोई भी सेटिंग नहीं है. They all stem from biological needs. एग्जैक्टली इट डज. लाइक फॉर एग्जांपल, हमने जो वोकेशंस की बात कही है, लोगों को लगता था कि बस ये ऐसे सोसाइटी में जेंडर डिफरेंसेस क्रिएट हो गए अपने आप ही, यानी कि हाँ वो थोड़े ज़्यादा एक्सट्रीम पे चले जाते हैं. जैसे कि मैं अगर ये बोलूँ कि अपना औरतें तो एयरफोर्स में आ नहीं सकती या औरतें तो आर्मी, दैट इज मिसोजिनिस्टिक एंड सेक्सिस्ट. बट वट ऑन मेजोरिटी वहाँ पर होंगे, मतलब मैं बाहर नहीं कर सकता ना, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता कि आप आ ही नहीं सकते. लेकिन अगर मैं छोड़ दूंगा ना एगैलिटेरियन सोसाइटी को, जो जहां अप्लाई करे करना चाहे कर सकता है, तो नेचुरली भी यही आएगा. और यही हुआ है. I think in Scandinavian countries में बहुत ज्यादा फोर्स हुआ है, but it hasn't changed anything. It hasn't changed anything. वो वहीं पर ही है सारी, वो जो गोल पोस्ट थी वो वही है. बिकॉज अगेन उसका प्रूफ भी पॉइंट ये हुआ है कि इट हैज अ बायोलॉजिकल सेटिंग टू इट एंड एवोल्यूशनरी सेटिंग टू इट. इस वजह से लोग उन्हीं डायरेक्शंस में जाते हैं, राइट. Exactly. So that's about it. And this is like the final episode of our social psychology series. It has been great fun with you, Adnan. Absolutely. Right? You have given me a little bit of thoda bahut problem cancelling it once or twice, but you've been a great partner. I think it was. I think we explored a lot of things in depth that in a classroom setting would have been boring, but using real life examples, real life scenarios, our day-to-day life, whether it's aggression, whether it's socialization, whether it's identity. So I think it's something that would benefit Ajay, a lot of people. when we are going to do this again, I would just request audience, if they have any ideas, if they want this, any feedback perhaps, they want more people, they want different topics, they can obviously comment and tell us or give us some feedback, and we are going to surely add on to it, and then we can do something different. Right? Absolutely. Do you have anything in mind in terms of what our next series is going to be about? We will keep people posted. That's what the feedback is about. If they want to talk about something, they can let us know and we can start a series on that. Perfect. Well, in that case, this wraps up our session for social psychology series. Hopefully, we'll be coming back with a new topic and with a new series, and we'll see you all soon. Take care and bye-bye.